So which plan is better? Bajaj My Healthcare or HDFC Ergo's Optima Secure? Both these plans come from brands with decades of trust. On one side, we have HDFC, which is one of the largest banks in the world. On the other side, we have Bajaj, which is among the biggest and most influential business families in India. But when comparing products, I'm sure it's not just about the brand that matters. What also matters is to understand all the fine print in the offerings that agents talk about, and even more, how do they fare in claims? What's their track record? And that's what we will be bringing in this video. Using my 20 years of experience and deep data back research from ILM Research, I will break down both these plans clearly for everything that matters. Mahavir Chopra, the founder and chief executive officer of Beshak.org. So here's what we will be covering in this video. 1. A comparison of unique features with the fine print. 2. A quick roll call of the core benefits, the waiting periods, and the fine print inside that. 3. A detailed look at the real world service experience, starting from customer service and most importantly, claims experience. Then a quick comparison of the pricing, and finally, we will understand how these plans are rated by ILM Research. ILM Research is India's only independent insurance ratings that through deep research gives one single data-backed rating for all insurance plans, making it easier to compare all products in the market. Now, one thing before we move ahead in the video. Look, health insurance is full of technical terms and conditions, legal and medical jargon. While I'll try to keep it easy for you to understand everything at any point in time, if you feel confused, overwhelmed, and want to have a personalized one-to-one consultation with industry experts, you can always consult India's top 5% insurance experts only on Beshak.org for completely free. Mind you, these are experts and not call center freshers who have real world claims and product experience. So what we will be doing is that we will be taking the USPs, the unique USPs of each of these plans first, and then we will also look at the USPs which are comparable between both these plans. Starting with HDFC Ergo, HDFC Ergo is most popular for the specific benefit which is the 2x cover from day one, which basically is that अगर आप 10 लाख का कवर लेते हो तो आपको day 1 से 20 लाख का कवर मिलता है. ये बेनिफिट HDFC का सबसे ज़्यादा उनके एजेंट्स, उनकी कंपनी सब कुछ सब लोग बेचते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट यूएसपी है समझना. सेकंड जो यूएसपी है एचडीएफसी अर्गो, ये वाला बाय द वे जो बेनिफिट है ये बजाज में नहीं अवेलेबल है. नेक्स्ट इज लिमिटलेस एड ऑन. This is a unique feature of HDFC Ergo Optima Secure versus Bajaj. So what is this? This basically gives you an unlimited sum insured for one claim in your lifetime. Basically हम जब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं हम एक सम इंश्योर्ड चूज करते हैं. वो सम इंश्योर्ड इनफ है कि नहीं है हमको आज के लिए पता है, मे बी 10 साल के लिए पता है, बट मेडिकल साइंस जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरीके से बेसिकली डिजीजेस चेंज होती जा रही है, हमको मालूम नहीं है कि कितना हॉस्पिटल बिल आ सकता है. तो ये एक बेसिकली आपको पूरे लाइफ टाइम में एक बार आप अनलिमिटेड क्लेम कर सकते हैं. ये ऑप्शन आपको ये कंपनी देती है. ये बेसिकली एक एड ऑन है. यू हैव टू पे एडिशनल प्रीमियम फॉर दिस. इट कैन ऑल्सो बिकम 2 टाइम्स. बेसिकली आप 2 बार यूज कर सकते हैं ये अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का ऑप्शन इन अ लाइफ टाइम इफ योर सम इंश्योर्ड इज अबव 50 lakhs. तो ये बेसिकली एक एड ऑन है. इसका प्रीमियम भी निकाल के रखा था यहाँ पे, तो ये भी बता देता हूँ. अप्रॉक्सीमेटली 3,163 रुपीज है फॉर अ 10 lakh सम इंश्योर्ड फॉर अ फैमिली ऑफ 3 विद अ 30 ईयर एज. ओके, तो ये थे यूनिक यूएसपीज ऑफ एचडीएफसी अर्गो जो बजाज में नहीं थे. अब हम 2 बेनिफिट ले रहे हैं जो बजाज में है और एचडीएफसी में नहीं है. पहला जो है वो है इंटरनेशनल कवर. ठीक है, ये एक एड ऑन है जो बजाज देता है. उसमें बेसिकली अगर कोई भी टाइप का इमरजेंसी ट्रीटमेंट आपको लगा वाइल यू आर अब्रॉड, then that gets basically covered in this. Please be very careful to hear this. प्लान ट्रीटमेंट्स कवर्ड नहीं है, सिर्फ इमरजेंसी ट्रीटमेंट कवर्ड है. इसमें एक कोपे है 10% का जो मैंडेटरी है, और एक लिमिट है कि आप 45 डेज कंटिन्यूस एक ट्रिप में बेसिकली यूज कर सकते हैं इसको. और पूरे जो आपकी साल की जो टोटल ट्रिप्स होती है वो 180 डेज के नीचे होनी चाहिए. इसका भी प्रीमियम निकाला हुआ है तो बता देता हूँ. 4,785 रुपीज इसका प्रीमियम आता है एडिशनली ओवर एंड अबव वॉट एवर यू विल पे फॉर द पॉलिसी. सेकेंड जो एक बेनिफिट है, यूएसपी है जो बजाज में है, जो एचडीएफसी अर्गो में नहीं है, एक इनबिल्ट एक्सटर्नल मेडिकल एड का बेसिकली बेनिफिट है. बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस में मेडिकल एड जो होती है, इक्विपमेंट जो होती है, वो नॉर्मली कवर्ड नहीं होती. जैसे व्हील चेयर हो गया, वेंटिलेटर हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो गया, ये कवर्ड नहीं होता है हेल्थ इंश्योरेंस में. बट इन बजाज माई हेल्थ केयर ये कवर्ड होता है और विदाउट एनी एड ऑन आपको बेसिकली ये मिल जाएगा. इसमें एक कवर लिमिट का एक रेंज है 10,000 से 50,000 डिपेंडिंग अपॉन योर सम इंश्योर. तो ये सारे यूनिक बेनिफिट्स थे बजाज के और एचडीएफसी के. नाउ मूविंग ऑन टू सम यूएसपीज व्हिच आर देयर इन बोथ द प्लान्स. फर्स्ट वन इज मैटरनिटी कवर. मैटरनिटी कवर जो एचडीएफसी अर्गो देता है वो एड ऑन है. आपको एडिशनल प्रीमियम पे करके ऑप्ट करके फिर लेना है. इसमें आपको जो कवर है वो डिलीवरी एक्सपेंसेस, प्री एंड पोस्ट नेटल, आईवीएफ, एम्ब्रियो स्टोरेज कॉस्ट सारे कवर होते हैं. इसमें आपको सम इंश्योर चूज करना है. 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख,
ये सम इंश्योर्ड ऑप्शन है, 2 साल का वेटिंग पीरियड है। बजाज के केस में ये इनबिल्ट बेनिफिट है, आपको मैटरनिटी बिना पैसे दिए कवर मिल रहा है। ये बेसिकली जो बेनिफिट है 5 लाख की सम इंश्योर्ड के ऊपर अवेलेबल है। इसमें जो कंडीशंस है वो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। इसमें कवर लिमिट जो होता है वो आपके सम इंश्योर्ड पे डिपेंड करता है। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 लाख से 10 लाख का आपका सम इंश्योर्ड है तो आपको 50,000 का बेसिकली कवर मिलेगा। वैसे ही 15 से 20 में 75,000 का, और 20 लाख के ऊपर 1 लाख का। 1 लाख का लिमिट है, 1 लाख के ऊपर मैटरनिटी का कवर नहीं है। इसमें जो वेटिंग पीरियड है एचडीएफसी में हमने जो देखा था वो 2 साल था। इसके केस में 3 साल का वेटिंग पीरियड है। आप अगर मल्टी टेन्योर पॉलिसी लेते हो तो आप इसको रिड्यूस करके 1 साल कर सकते हो, 1 साल से कम कर सकते हो, तो बेसिकली 3 साल जो है वो 2 साल हो जाएगा। मूविंग ऑन टू 0 डे बेबी कवर, ये भी एक चीज है, एक यूएसपी है जो अवेलेबल है बजाज में एज एन इनबिल्ट फीचर। ये वाला जो यूएसपी है ये एचडीएफसी अर्गो नहीं देता है। इसमें क्या है, ये इनबिल्ट फीचर है, यू डोंट हैव टू पे एडिशनल प्रीमियम फॉर दिस। इसमें आपका जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका सारा जो हॉस्पिटलाइजेशन है ड्यू टू एन इलनेस दैट गेट्स कवर्ड फ्रॉम डे 0 व्हेन द बेबी इज बॉर्न। ये सेपरेट कवर है, इसमें आपको कवर 1 लाख से बेसिकली 15 लाख तक मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन योर सम इंश्योर्ड। तो अगर आप लेट्स से 10 लाख का कवर लेते हैं, जो बेस कवर लेते हैं, तो आपको 5 लाख का कवर बेबी का मिलेगा फ्रॉम डे 0 व्हेन द बेबी इज बॉर्न विदाउट एनी प्रीमियम्स, राइट। इसमें भी वेटिंग पीरियड लगेगा, ऑब्वियसली जो मैटरनिटी से कनेक्टेड है तो मैटरनिटी का जो 36 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है इसमें भी लगेगा। अगर आप अगेन कोई 1 ईयर का वेटिंग पीरियड कम कर सकते हैं अगर आप मल्टी ईयर पॉलिसी ले रहे हैं। नेक्स्ट इज जो कंपेरेबल है वो है ओपीडी बेनिफिट। दोनों प्लान्स में ओपीडी बेनिफिट अवेलेबल है। इन केस ऑफ एचडीएफसी अर्गो ये एड ऑन के द्वारा अवेलेबल है, डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना है। इसमें आपको फिजिकल टेली कंसल्टेशन, साइकोलॉजिकल ई काउंसलिंग सेशन, डाइट एंड न्यूट्रिशन ई कंसल्टेशन, ये सब कुछ मिलता है। नंबर ऑफ सेशंस जो है अनलिमिटेड है, आप कितने भी सेशंस ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ये सिर्फ उनके नेटवर्क प्रोवाइडर से आप ले सकते हैं। इट इज लिमिटेड टू कैशलेस फैसिलिटी। कैशलेस ही अवेलेबल है तो अच्छा लगता है सुनने के लिए, बट आप वो नेटवर्क के बाहर आप ये यूज नहीं कर सकते। आपको यूजुअली उनकी ऐप से बुक करके फिर आपको कंसल्टेशन मिलेगा। इन केस ऑफ बजाज अगेन ये भी जो बेनिफिट है ये इनबिल्ट है, आपको कुछ एडिशनल प्रीमियम नहीं पे करना है। आपको जो मैंने एचडीएफसी का बताया उसमें एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ता है, बजाज में इनबिल्ट है। बजाज का ओपीडी बेनिफिट काफी इंटरेस्टिंग है और काफी मतलब आई वुड से इज क्वाइट गुड व्हेन आई कंपेयर, बिकॉज स्पेसिफिकली दैट इट इज कवरिंग विदाउट एनी एड-ऑन्स। द लिमिट ऑफ ओपीडी जो आपको सम इंश्योर्ड मिलता है ओपीडी का वो 2 टाइम्स योर बेस प्रीमियम है। जो अभी आप प्रीमियम पे करेंगे, आपका जो बेस पॉलिसी उसका प्रीमियम पे करेंगे उसका 2x कवर होता है ओपीडी। मतलब आप ओपीडी का खर्चा जो है 2x आपने जो प्रीमियम पे किया, आपने जैसे 25,000 पे किया तो आप 50,000 रुपए का ओपीडी बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसमें कैसे कैसे टाइप के कवर्स है, टेली कंसल्टेशन है 5 कंसल्टेशन पर डे, 15 पर मंथ अवेलेबल है। फिजिकल कंसल्टेशन जो है 500 रुपए का जनरल फिजिशियन, 1200 रुपए फॉर स्पेशलिस्ट पर कंसल्टेशन जो है वो मिलता है, और 5 कंसल्टेशन पर डे, 15 पर मंथ, सेम चीज एप्लीकेबल है। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर आल्सो कवर्ड। बोथ दीज थिंग्स, द कंसल्टेशंस एंड द डायग्नोस्टिक टेस्ट हैव अ कैप ऑफ 50% ऑफ द सम इंश्योर्ड का लिमिट। तो अगर आपका बेसिकली जो ओपीडी का सम इंश्योर्ड है वो लेट्स से हमने जो बात की थी 20,000 का प्रीमियम है, 40,000 का आपको ओपीडी बेनिफिट मिला है, तो आप 40,000 में से 20,000 कंसल्टेशन में यूज कर सकते हो और 20,000 के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट में यूज कर सकते हो। इसमें बेसिकली 20% कोपे लगता है अगर आपने प्री अप्रूवल के बिना अगर किया है, बट रीइंबर्समेंट भी अवेलेबल है, कैशलेस भी अवेलेबल है। हमने जो देखा था एचडीएफसी अर्गो के केस में सिर्फ कैशलेस अवेलेबल है, इसमें रीइंबर्समेंट और कैशलेस दोनों अवेलेबल है। तो ओपीडी के केस में और मैटरनिटी के केस में ये प्लान बहुत ज्यादा अच्छा खड़ा रहता है, बिकॉज ये सारी चीजें अदरवाइज आपको एड ऑन लेनी पड़ती और ओपीडी बेनिफिट भी बेटर है बजाज के केस में। मूविंग ऑन टू अ क्विक रोल कॉल ऑफ कोर बेनिफिट्स। कोर बेनिफिट्स वो पहले बेनिफिट्स होते हैं जो आपके हॉस्पिटल बिल में सबसे ज्यादा डिडक्शंस लाते हैं। रूम रेंट लिमिट, एचडीएफसी अर्गो एनी रूम का लिमिट रखता है। आप कोई भी रूम चूज कर सकते हैं, कोई आपको लिमिटेशन नहीं है। इन केस ऑफ बजाज ये सिंगल प्राइवेट एसी रूम ही अवेलेबल है। अगर आप 15 लाख के ऊपर का सम इंश्योर्ड लेते हो तो आपको एक ऑप्ट-इन मिलता है जहां पे आप उसको एनी रूम कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, 60 डेज, 180 डेज इन केस ऑफ एचडीएफसी अर्गो, 60 डेज एंड 90 डेज इन केस ऑफ बजाज अलियांस। नॉट बजाज अलियांस बाय द वे, इट इज नाउ कॉल्ड बजाज जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज डे केयर ट्रीटमेंट, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। Day care treatment, all treatments covered up to SI, both in case of HDFC Ergo and Bajaj. Domiciliary treatment जो है, all illnesses covered in case of HDFC Ergo up to sum insured. In case of Bajaj 16 illnesses का एक exclusion है, domiciliary treatment covered है, but कुछ जो diseases होती है जैसे डायबिटीज, एस्मा, हाइपरटेंशन जो होता है उसके केस में बेसिकली बजाज जो है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट नहीं देगा आपको। नेक्स्ट इज ऑर्गन डोनर, बोथ कवर अप टू एसआई। मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑल्सो बोथ कवर अप टू एसआई, कोई लिमिट्स नहीं है, बेस्ट है इसमें, मतलब कोई इशू नहीं है, आप जा सकते हैं आगे, दोनों प्लान में इक्वली अच्छा अवेलेबल है। गुड टू हैव बेनिफिट्स में 3 बेनिफिट्स है, क्विकली वो भी समझते हैं। कंज्यूमेबल्स कवर, कंज्यूमेबल्स कवर मतलब जो नॉन मेडिकल आइटम्स होती है एक हॉस्पिटल बिल में, वो आपको टिपिकली एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करती है, बट आजकल सबने इधर एड ऑन के थ्रू या इनबिल्ट के थ्रू कवर करना शुरू कर दिया है। इन केस ऑफ एचडीएफसी अर्गो इट इज एन इनबिल्ट एड ऑन,
68 listed non-medical items such as mask, gloves will be covered up to SI. In case of Bajaj also it is inbuilt, but 105 listed non-medical items cover होती है, तो ज़्यादा comprehensive बजाज है. बोनस जो है वो समझते हैं. दोनों के केस में इनबिल्ट जो बोनस है वो ऐसा है कि इंक्रीजेस बाय 50%, accumulates by 100% in case of HDFC Ergo. In case of Bajaj it is 25% if the SI is below 5 lakhs. SI मतलब जो सम इंश्योर्ड है, और अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख के ऊपर है तो 50% इंक्रीज होता है सम इंश्योर्ड जब आप क्लेम नहीं करते हैं. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है. HDFC Ergo की केस में गारंटीड बोनस है, लॉयल्टी बोनस है. इन केस ऑफ बजाज जो है वो अगर आप क्लेम नहीं करते हैं तो ही आपको बेसिकली वो बोनस मिलेगा. कितना मिलेगा? अगर आपका 5 लाख के ऊपर सम इंश्योर्ड है तो 50% फर्स्ट ईयर, 100% नेक्स्ट ईयर. इसमें बेसिकली लाइक आई सेड, एक में नो क्लेम है, एक में लॉयल्टी बोनस है. मूविंग ऑन टू रिस्टोरेशन बेनिफिट, ये भी आजकल बहुत ही कॉमन बेनिफिट हो गया, सारे प्लान्स में अवेलेबल होता है. इनबिल्ट HDFC में आपको रिस्टोरेशन वंस मिलता है. आप अगर एड ऑन लेते हो तो मल्टीपल टाइम्स आप करवा सकते हो. इन केस ऑफ बजाज जो है, अगर आप SI बिलो 5 लैक्स है तो वंस है, अगर 5 लैक्स के ऊपर आपका कवरेज है तो अनलिमिटेड है. Now let's understand थोड़ा और डीप में restoration benefit. In case of HDFC Ergo, restoration is available for all illnesses. Same in case of Bajaj. Triggers from second claim in case of HDFC as well as Bajaj. एक important difference है यहाँ पे. In case of HDFC Ergo जो है partial exhaustion में भी restoration click होता है, trigger होता है. बजाज ने ये कहा है कि भाई पूरा सम इंश्योर्ड कंप्लीट होने के बाद आप नेक्स्ट क्लेम में इसको यूज कर सकते हो. तो ये थोड़ा इंफीरियर बेनिफिट है रिस्टोरेशन का कंपेयर टू व्हाट बजाज HDFC इज ऑफरिंग. The benefit that Bajaj is giving is slightly inferior. Now moving on to the temporary exclusions or waiting periods. स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन है दोनों में. 30 डे का जो एक्सक्लूजन होता है दोनों में है. आपका जो 3 ईयर वेटिंग पीरियड है फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वो भी दोनों में है, और जो 2 ईयर वेटिंग पीरियड होता है स्पेसिफाइड डिजीजेस का वो भी दोनों में है. अब हम समझते हैं कि मॉडिफिकेशंस क्या अवेलेबल है. तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन जो है बजाज जो देता है कि आपका पीडी वेटिंग पीरियड को आप 3 ईयर से 2 साल या 1 साल कर सकते हो बाय पेइंग एक्स्ट्रा. इन केस ऑफ HDFC Ergo ये अवेलेबल नहीं है, बट अलग कुछ अवेलेबल है. ABCD, एस्मा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज, ये चारों में आप जो वेटिंग पीरियड है उसको 30 डेज पे लेके आ सकते हो. 31 डेज में कवर होगा. एक एडिशनल प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द कस्टमर सर्विस. ये नॉर्मली ऐसे कोई पब्लिश्ड इसके मैट्रिक्स होते नहीं है. जो ILM रिसर्च है, दे डू देयर ओन ऑडिट्स ऑन इंश्योरेंस कंपनीज टू फाइंड आउट हाउ गुड आर दे ऑन कस्टमर सर्विस. टोल फ्री के केस में दे हैव मार्क्ड HDFC Ergo एज एवरेज, बजाज एज स्लो. तो कंपैरेटिवली आपको अगर टोल फ्री का सर्विस है तो बजाज में थोड़ा खराब मिलेगा कंपेयर टू HDFC Ergo एज पर द ऑडिट्स ऑफ ILM रिसर्च. इन केस ऑफ ट्विटर ऑल्सो इट इज एवरेज इन केस ऑफ HDFC Ergo एंड स्लो इन केस ऑफ बजाज. तो बजाज टिपिकली कस्टमर सर्विस में यहाँ पे इट्स नॉट स्टैंडिंग सो ग्रेट इन कंपेयर टू HDFC Ergo. नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो अकॉर्डिंग टू मी, 4 इंपॉर्टेंट metrics that we will look at in case of claims experience. Quickly, speed of claim settlement, मतलब कितने claims इंश्योरेंस कंपनी को जो मिलते हैं उसमें से 30 डेज में कितने सेटल करते हैं वो उसको समझेंगे. 96.63% in case of HDFC Ergo, 99.40% in case of Bajaj. So Bajaj is like leading in this specific ratio in terms of speed of settling claims. Next is claim complaints. Claim complaints में HDFC Ergo is at 0.15%. In case of Bajaj it is at 0.03%. तो जो बजाज का कंप्लेंट्स रेशियो है जो मैंने अभी तक देखा है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट. कंप्लेंट्स बहुत कम आ रही है, मतलब कस्टमर्स काफ़ी सेटिस्फाइड है व्हेन यू कंपेयर इट टू अदर कंपनीज इन द मार्केट. एंड इफ यू लुक एट बोथ दीज रेशियोज इट्स कमिंग टू ऑलमोस्ट HDFC यहाँ पे 5 गुना ज़्यादा है बजाज के केस में. नॉर्मली जो मैंने प्लान्स कंपेयर किया है उसमें जो भी प्लान होता है उसमें 3 गुना ज़्यादा दूसरी प्लान होती है कंपेयर टू बजाज. तो सॉरी कंपेयर टू HDFC Ergo, बट यहाँ पे HDFC Ergo इज फॉलिंग शॉर्टर कंपेयर टू बजाज. नेक्स्ट इज इंकर्ड क्लेम रेशियो. इंकर्ड क्लेम रेशियो इज अ रेशियो वेयर आप अगर एक इंश्योरेंस कंपनी 100 रुपये प्रीमियम कलेक्ट करती है तो कितना परसेंटेज उसका क्लेम में पे करती है. 87.04% इन केस ऑफ HDFC Ergo, 90.01% इन केस ऑफ बजाज. टिपिकली 60 to 80% के बीच में होना चाहिए रेशियो, तो अच्छा रेशियो गिना जाता है. दोनों 80% के ऊपर है. इसका एक ही सिंपल इंडिकेशन है कि ये लोगों के हमारी अंडरस्टैंडिंग से प्रीमियम जो है वो काफ़ी बढ़ेंगे. तब तक एक कंपनी 80% ICR में नहीं रहता है तो वो बाकी का जो पैसा खर्चा जो करती है इन टर्म्स ऑफ कमीशंस में खर्चा करती है, और ओवरहेड्स में, ऑफिसेस चलाने में खर्चा करती है, आपको पॉलिसी भेजने के लिए जो कुरियर के कॉस्ट होते हैं, बहुत सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं, उसका जो खर्चा करती है वो बाकी 20% में उनको कवर करना है, तब वो प्रॉफिट करेगी. तो हमारे व्यू में अगर 20% से कम मार्जिन है इंश्योरेंस कंपनी के पास तो डेफिनेटली वो प्रीमियम बढ़ेगी. इन दोनों के केस में ये सिचुएशन है. बजाज इज वर्स एज कम्पेयर टू HDFC Ergo इज ऑल आई वुड से. क्लेम रिजेक्शन रेशियो, ये रेशियो वो वाला रेशियो है जिसमें अगर 100 क्लेम एक इंश्योरेंस कंपनी को आती है तो कितने क्लेम वो रिजेक्ट करती है. ये आपको पता चलता है कि आपको बेसिकली पता चल रहा है इससे कि एक इंश्योरेंस कंपनी का बेसिकली कितने रिजेक्ट करी है क्लेम्स, आपको वो पता चलता है और कुछ नहीं. मतलब इंपॉर्टेंट है, बट मेरे व्यू पॉइंट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशियो. इससे आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिलता है कि हाउ मेनी क्लेम्स इज एन इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टिंग. 2.47% इन केस ऑफ HDFC Ergo Optima Secure, 5.68% इन केस ऑफ बजाज. तो बजाज हैज़ अ हायर
रिजेक्शन कंपेयर टू HDFC Urgo. Although I would like to say कि बजाज का जो 5.68% रेशियो है वो फिर भी मैंने जो बहुत सारे दूसरे कंपनी से किया उससे तो कम ही है, राइट? बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू से दैट obviously HDFC Urgo is standing way ahead in case of claim rejection ratio. So that was the comparison of all the claims experience metrics of basically both these plans. Now moving on to pricing. Pricing समझना जरूरी है कि इंश्योरेंस में क्लेम कितना भी अच्छा दे दे, सर्विस कितना भी अच्छा दे दे, आपको कोर बेनिफिट्स अच्छे दे दे, आपको यूएसपीज अच्छे दे दे, बट अगर अफोर्डेबल ही नहीं है प्रीमियम तो पॉइंट नहीं होगा. तो लेट्स कंपेयर द प्रीमियम्स. Standard Mr. Kumar, who is 30-year-old, taking a policy for himself, wife, kid, who's 1 year old, Bombay, 10 lakh sum insured, 24,035 in case of HDFC Urgo, 20,366 in case of Bajaj. तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. एक ही दो चीज़ है जो हमने समझ में आई है. एक कि बजाज बहुत सारे इनबिल्ट फीचर्स देता है जो HDFC नहीं देता है, जो हमने बात की, मेटर्निटी देता है, 0 डे बेबी कवर देता है, आपको इक्विपमेंट कवर देता है, तो उसकी वजह से इसका प्रीमियम में ये बेक्ड इन है. और बेसिकली HDFC Urgo में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो बेक्ड इन है कि 2x कवर बेक्ड इन है, तो उसकी वजह से उसका प्रीमियम ज़्यादा है. बट दोनों का अगर आप कंपेयर करो तो ऑब्वियसली बजाज इज द चीपर ऑप्शन कंपेयर टू बोथ द ऑप्शंस. नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज बेसिकली रेटिंग्स. रेटिंग्स जो है हम नहीं करते, ये रेटिंग्स आर डन बाय ILM रिसर्च. ILM रिसर्च इज इंडियाज मोस्ट इंडिपेंडेंट अनबायस्ड रेटिंग प्लेटफॉर्म, जो बेसिकली सारी इंश्योरेंस कंपनीज के जो प्लान्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं, उसको बेसिकली रेट करती है. ये कोई भी कंपनी से कोई टाइप का कमीशन नहीं लेती है, कोई टाइप का मार्केटिंग फी नहीं लेती है. इसकी वजह से ये रेटिंग्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है. 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिस पे ILM रेट करती है, क्विकली वो समझते हैं. प्रोडक्ट में बेसिकली इट इज रेटिंग HDFC Urgo, सॉरी नॉट बजाज, HDFC Urgo at 4.88 out of 5 compared to Bajaj is rated as 3.47. तो बेसिकली प्रोडक्ट में HDFC Urgo is taking the lead. Customer service 4.97 in case of HDFC Urgo, which is almost a perfect figure of 5. Bajaj has 4.19. So comparatively, again, HDFC is taking the lead. Third is claims experience, 4.93 in case of HDFC Urgo and 4.64 in case of Bajaj. बहुत ही छोटा छोटा डिफरेंस में दोनों सर्विस और क्लेम्स में दोनों यहाँ वहाँ जा रहे हैं. बट अगेन HDFC Urgo is taking a lead. ओवरऑल जो रेटिंग है 4.58 in case of HDFC Urgo, 3.93 in case of Bajaj Allianz My Healthcare. तो लार्जली अगर देखने जाए ILM रिसर्च के हिसाब से, इफ यू आर लुकिंग एट ओनली दीज टू प्लान्स इन द मार्केट एंड डिसाइडिंग वन, देन HDFC Urgo इज द रिकमेंडेड प्लान बेस्ड ऑन द रेटिंग्स दैट वी हैव डन ऑन अ स्टैंडर्ड कस्टमर बेसिस. बट अगर आप थोड़ा और डीप जाना चाहें और आप एक कस्टमाइज्ड आपके हिसाब से, आपके पर्सनलाइजेशन के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको पॉलिसी खरीदनी है, तो हमेशा एक एक्सपर्ट को ढूंढिए. एक्सपर्ट कौन होता है? जो बेसिकली पॉलिसी चिपकाने के लिए फेमस नहीं होता है, आपके बिल्डिंग में, लिफ्ट में, कहीं पे भी मिले तो आपको पॉलिसी चिपका रहा है, वो वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. जो लोग क्लेम्स के लिए जाना जाते हैं, जो क्लेम्स के लिए फेमस है कि ये बंदा क्लेम्स पास करवाता है, वैसे पर्सन के पास से पॉलिसी लीजिए. अगर आपको आपके एरिया में, आपके लोकेशन में नहीं मिल रहा है ऐसा कोई भी, तो आप बेशक पे आ सकते हैं. बेशक पे आपको फ्री कंसल्टेशन मिलती है इंडिया के टॉप 5% इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स के पास से. इनको हम लोग टेस्ट करते हैं, रिगरसली स्क्रीन करते हैं टू अंडरस्टैंड कि इनको सही में आता है इंश्योरेंस, उनका ट्रैक रिकॉर्ड सही है. तो आप इनके पास से कंसल्ट कर सकते हैं. कंप्लीटली स्पैम फ्री एक्सपीरियंस है और कोई चार्जेस नहीं है, तो ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है. डू ट्राई अस आउट. द लिंक्स आर बेसिकली इन द पिन कमेंट एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन. Okay, so that was the video. That was the comparison between both these popular plans, HDFC Urgo Optima Secure and My Healthcare from Bajaj Allianz. Hope you found this video useful and it helped you understand the differences between these two plans. If you did find it useful, do click on the subscribe button and give us a vote of basically appreciation. हमको बहुत खुशी होती है जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, हमको लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं. और ऑफ कोर्स लाइक का बटन दबाइए. और लास्टली, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है और आपको लगता है कि हमने कुछ नहीं बता पाए, आपको कोई एक ऐसी चीज़ है जो कवर नहीं हो पाई हमारे से, और कोई भी टाइप का क्वेश्चन है ये प्रोडक्ट के बारे में या कोई और प्रोडक्ट के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं. नीचे कमेंट करेंगे तो हमारी टीम में से कोई आपको रिप्लाई कर देगा. अगर आपको जो कंसल्टेशन की मैंने बात की, अगर आपको वो कंसल्टेशन चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि लिंक्स अवेलेबल है. एक फ़ोन नंबर भी आएगा यहाँ पे स्क्रीन पे. वो नंबर पे आप अगर व्हाट्सएप से हाई कर देंगे तो हमारी टीम से कोई आपको कॉल करके पूरा मैनेज करके आपको एक कंसल्टेशन बुक करके दे देंगे. होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच.